Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, Shah. I am Ashish Asoppa, Assistant Professor, Department of Commerce and Management, University of Kota. Today I am going to take this session. My screen is visible. Yes, it is. Yes, Yes, yes. sir. Yes, Yes, sir. 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 Yes, sir. Yes, ma'am, please. Today I am going to present on AI chatbots and future of academic research. You all have heard about ChatGPT. Nowadays, it is very popular, but it is not the only chatbot. There are many chatbots of Bing also, and there are others, and other companies are also developing such AI chatbots. You have already encountered such type of service chatbots where you message and computerized response you have received on some product you have purchased on some customer website you have gone. But today what we are discussing over here is its relation with academic research, right? Yes, sir. Okay. So first of all, we must know about the characteristics of these chatbots. So, as a human, for doing research, what we do, we gather some information, we observe that information, then we analyze the information. Why we do so? To satisfy our curiosity, in to solve some research problem, to solve some social problem, to solve some medical problem. And in the process of conducting that research and publishing that article, we used to work tirelessly for great amount of time, and so we need resources at human and time level. So these are great constraints also. So what human has done, they have developed tools like calculators, computers, and internet, cloud technology uh, to help him in research process to minimize the errors and confusion, right? Like today we have Google Scholar and other facilities which facilitate us, and we have large amount of data while we are sitting at uh, our desktops and laptops or in mobile even. So wherever we are, we have lots of information in our hands because of the technological advancement. Uh, Now a new technology has been evolved. AI, artificial intelligence, is developing day by day, and today we have chatbots
who responds on our query, right? So artificial technology has transformed the way research and education is conducting with the help of these chatbots, because these chatbots help us in doing repetitive tasks and assist us in data analysis and various forms which we will study in coming slides. So there are numerous studies. There are numerous studies and articles which is exploring the benefits of AI in the academic field, right? And why we are today we are why we are talking about these, because they are developing so fast and they are learning the way human interact in such a fast way that they are able to process the human brain, they are able to identify the patterns of behavior, they are able to identify the ways of working, they can collect data, they can analyze data on the inputs which are being given by us, or scientists or researchers or humans. Uh, in this technological revolution, on 30th November 2022, OpenAI has introduced ChatGPT, which was uh, uh, which work on artificial intelligence embedded systems, and which has taken the game on a very whole new level, right? Whole scientific community is suspicious about the use of these chatbots in research areas, and some people are enthusiastic also that how this will change the coming scenario in research and academic world. In recent years, AI chatbots has exponentially increased their ability to imitate intelligent human behavior through self-learning capabilities. Advantages of AI chatbots. What are the advantages? They help us to work faster and in simpler methods, because they process work for us. They save time. They eliminate the bias, which is bias is introduced because of the human errors, and they automate repetitive tasks so that in least amount of time, loads of repetitive tasks is being completed. They and the biggest advantage is their intelligence is growing day by day, and the information which they can process and collect from the worldwide resources is exponentially increasing. They can serve as a powerful boosters for scientists who are engaged in more aggressive scientific researches, and huge amount of data can be analyzed with the help of these AI chatbots. They assist not only in writing abstracts articles, but they also help in summarizing data, providing suggestions for the structure, references, and language review. Because they work on artificial intelligence, so the text which we input, they can produce that material in multiple styles, and they can assist in wide variety of topics. They can help you in generating the initial drafts of your work with minimal input. Furthermore, they can organize, compose the method sections by including sample sizes, data analysis techniques, as well as providing well-structured results and discussions section. They improve the efficiency and accuracy of research. They quickly process vast amount of data. They identify patterns and relationships which might be difficult for human to detect. They work more efficiently and more effectively than a human research assistant, enabling research to because they do so much work, so they give you time and energy to focus on more complex and creative tasks. They can personalize the learning pathways in education system. They are helping very much, because they understand the level of a student, and they devise a personalized learning platform or personalized learning course for the student. So by analyzing the student's learning style, student learning ability, and they provide individualized recommendation
so that student may learn faster. But there are some concerns and challenges as well with the AI. We can always thought of a time when computers were first introduced, when calculators were first introduced, or any human assistant when when it was introduced for the first time. Everybody was concerned whether it will work for the benefit or there might be any disadvantages of using this, or they might be harmful for the overall society or at the community level. So with chatbot artificial intelligence technology, we are concerned that still it may create bias of its own. It may create discrimination in research and education. This technology, because with every technology misuse is also possible. So it may be possible that this technology might be misused and manipulated to produce unreliable results. सर साथ में थोड़ी थोड़ी हिंदी भी बोलते चलिए ताकि हमारे भी समझ में आ जाए। बिल्कुल सर। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है चैटबॉट एआई की, इसका सबसे बड़ा खतरा यही है कि इसको मिसयूज भी किया जा सकता है, मैनिपुलेट भी किया जा सकता है बायस्ड रिजल्ट निकालने के लिए। कई बार ये खुद अनरिलायबल रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर देती है, क्योंकि अभी ये डेवलपिंग स्टेज में है, बहुत तेजी से डेवलप हो रही है, डीप न्यूरल नेटवर्क पे बेस्ड होती है। इंटरनेट का जो पूरा नेटवर्क है उससे ये डेटा यूज करती है। तो कई बार बिकॉज ऑब्वियसली इट इज वर्किंग ऑन सम algorithms which is developed by humans, and because it is continuously developing, तो कुछ algorithms faulty भी हो सकते हैं। उस कारण जो रिजल्ट ये प्रोड्यूस करती है वो कई बार इतने रिलायबल नहीं भी होते हैं। ठीक है, चैट जीपीटी क्या है? एक मैसिव डेटा सेट है टेक्स्ट का जो इंटरनेट पे बेस्ड है, जो कि ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स जनरेट करता है जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं। अभी आप गूगल यूज करते हैं, इस गूगल को आप ये समझिए कि एक गूगल की जगह अगर कोई ह्यूमन लाइक मशीन बैठी हो और ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज दे रही हो, जो आपकी बात को समझकर उसका रिस्पॉन्स दे रही है, तो आपको कितना कैसा फील होगा। अभी हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे तो आपको बात समझ आएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैटबॉट्स जो हैं वो बहुत रैपिडली एडवांस कर रहे हैं रिसेंट ईयर में, और बहुत डिफरेंट फील्ड्स में बहुत तेजी से प्रिवेल कर रहे हैं। बिजनेस और कस्टमर सर्विस में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स नजर भी आने लग गए हैं। लेकिन आज हम इसकी एकेडमिक उसके अंदर बात कर रहे हैं। हाउएवर जो एआई चैटबॉट्स है उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि ये इनपुट जो है रिसर्चर के इनपुट देने पर ही रिजल्ट देता है। तो इट इज एज गुड एज यू आर। आपको क्या क्वेश्चन पूछना है वो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज ये आपके कोई काम का नहीं है। अगर आप इसमें फॉल्टी इंफॉर्मेशन डालेंगे तो ये फॉल्टी आउटपुट देगा। अगर आप इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वही गलत होगा तो फिर तो आपका डायरेक्शन जो है वही गलत, तो उसमें आंसर्स भी आने लग जाएंगे। तो ये आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, ये ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकता, ये रिसर्चर को रिप्लेस नहीं कर सकता। उसकी एक्सपर्टाइज, उसका जजमेंट, उसकी पर्सनैलिटी, उसके आइडियाज उतने ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, भले ही आप चैट जीपीटी की मदद लें। लेकिन जो चैटबॉट की मदद लेने से फायदा क्या होगा कि ये आपको पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस दे सकता है। आपको बहुत तेजी से आपके जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आपके पर्टिकुलर कस्टमाइज्ड वे में आंसर करता है। आप गूगल पे जाते हैं, जब आप कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो उस पे जो डेटा अवेलेबल है वो डेटा खुलता है। वो कई बार आपसे रिलेटेड होता है, कई बार नहीं होता है। तो वो डेटा किसी और पर्पस से वहां पे डाला गया है या उस पर्टिकुलर पर्पस से भी डाला गया है, तो आपको जो वो डेटा है उसी तरीके से नजर आएगा। लेकिन जो चैटबॉट है वो आपको पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन आपके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से उसका जवाब बनाता है और आपको देता है, वो भी विद इन सेकेंड्स। बिकॉज ये चैटबॉट्स हाईली इंटेलिजेंट हैं, और लेकिन ये फंक्शन जो करते हैं वो ह्यूमन हैंडलर्स के बेसिस, इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे ही करते हैं। बिकॉज जो आप टेक्स्ट इनपुट या वॉइस इनपुट देते हो उसी पे ये काम करता है। तो
रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, तो ये plagiarism- और हाँ रिसर्चर्स जी। के ऊपर है कि ये कैसे वर्क करेंगे। दे कैन तो ये वर्क एज गुड प्लेजारिज्म नहीं होगा सर, ये पार्डन प्लेजारिज्म नहीं होगा सर, ये Pardon? प्लेजारिज्म नहीं होगा अगर वो अपनी लैंग्वेज में दे देता है, बट स्टिल मशीनरी लैंग्वेज ही है सर, तो भी एक्सेप्टेबल होगा। अभी वो बात आएगी मैम, अच्छा, एक सेकेंड। जी सर। जो ये हम बात कर रहे थे कि लिमिटेशंस की, तो अल्टीमेटली जो एआई चैटबॉट्स हैं वो उतने इंटेलिजेंट हैं जितना कि एक रिसर्चर है। तो ये रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं, लेकिन फायदा ये है कि क्योंकि ह्यूमंस एफर्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो दे कैन वर्क टायरलेसली, वो टायरलेसली वर्क कर सकते हैं। उनके पास में आपके पास में टाइम बाउंडेशन नहीं है, वेन एवर यू विल आस्क इट विल रिस्पॉन्ड। तो ये सारे एडवांटेजेस भी उसके साथ में होते हैं। तो जैसा कि मैम ने कहा कि प्लेगरिज्म में इसमें नहीं आएगा क्या, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी है कि क्योंकि ये डेटा को अपनी लैंग्वेज में बना के देता है, तो आपको ये नहीं पता चलता कि ये किन सोर्सेज से इसने ये इंफॉर्मेशन पिक की है। और अगर आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस सोर्सेज से पिक कर रहा है, तो आप कैसे उसको साइट करेंगे, उसको साइट कैसे करेंगे और रेफरेंसेस में कैसे इंक्लूड करेंगे। तो अभी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके साथ में ये भी है। तो प्लेगरिज्म के लिए तो आपको खुद को सचेत रहना पड़ेगा, अदरवाइज ये उस मामले में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इथिकल डायलेमा क्या है? इथिकल डायलेमा ये है कि इसका यूज जो है वो किस तरीके से इस तरीके से किया जाए कि ये एडवांटेजेस भी साबित हो और इसका मिसयूज भी कम से कम हो। गूगल स्कॉलर में अगर आप सिंपल सर्च डालेंगे ना एआई चैटबॉट्स के बारे में, तो 54,600 आर्टिकल्स निकल के आ जाएंगे एंड 91,700 आर्टिकल्स ओपन जीपीटी पे आ जाएंगे, जिसमें से 16,900 तो सिर्फ इसकी इथिकल इम्प्लीकेशंस पे ही होंगे। तो इसकी स्ट्रॉन्ग कंसेंसस इस पे नहीं बन पा रहा है कि भाई इथिकल डायलेमा बना हुआ है कि एआई चैटबॉट जो है उसका साइंटिफिक रिसर्च में क्या योगदान रहने वाला है। और सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो प्लेगरिज्म ही है, क्योंकि एआई चैटबॉट जो है वो बिकॉज रिफ्रेश कर देता है, दूसरे के वर्ड्स को पैराफ्रेज करके ही आपको वो देता है। तो जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं प्लेगरिज्म डिटेक्शन के, वो इसमें थोड़े से उनके लिए मुश्किल हो जाता है उस प्लेगरिज्म को चेक को पकड़ पाना। लेकिन ऑब्वियसली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है वैसे वैसे उसके काउंटर एक्टिव सर्विसेज भी प्रोड्यूस होती हैं। तो इस ओरिजिनल सोर्सेज के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काउंटर एक्टिव सर्विसेज भी इंट्रोड्यूस हो रही हैं, जो कि एआई असिस्टेड प्लेगरिज्म को भी डिटेक्ट करेंगी और कर पा रही हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उस पर चेक रखने के लिए प्रोग्राम्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हमें अपनी समझदारी दिखाते हुए इसका इस्तेमाल करना है। आपके हाथ में अगर चाकू है तो आपको ये पता है कि भाई इसका इस्तेमाल फल काटने के लिए करना है, सब्जी काटने के लिए करना है, या किसी और इलीगल उसके लिए करना है। तो ये एक रिसर्चर की जिम्मेदारी है कि ये सुविधा आपको मिल रही है तो इसको आपको इस तरीके से यूज करना है कि वो ना तो एथिकली रॉन्ग हो और ना लीगली रॉन्ग हो। ठीक है। अगर हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं अगर किसी कोई रिसर्च पेपर राइटिंग में, तो उससे हमें क्या क्या मदद मिल सकती है। तो उससे हमें चैट जीपीटी क्योंकि 2022 में लॉन्च हो गया था, तो जितना भी ऑनलाइन डेटा 2021 तक का है, शायद दिसंबर 2021, वही लास्ट उसके अंदर फीड हुआ है, उसके बाद में नहीं हुआ। तो बिंग भी एक चैटबॉट है जो कि आपको, चैट जीपीटी जो है वो ऑनलाइन नहीं है, लेकिन बिंग का जो बॉट है वो ऑनलाइन है। तो जब उसमें सर्च करते हैं तो वो आपको जो डेटा देता है वो नेट से उठा के देता है। तो उसके साथ में कई बार वो सोर्सेज का रेफरेंस भी देगा।
लेकिन चैट जीपीटी ऐसा कुछ भी नहीं देगा। ये कंपाइल करता है और कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज करके मटेरियल आपको दे देता है। तो अगर आप जैसे रिसर्च मटेरियल कंपाइल करना चाहते हैं, बुक्स, आर्टिकल, जर्नल्स जो कि उसमें ऑलरेडी फीडेड है, तो वो ये आपको बता सकता है। आप चैट जीपीटी के साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन कर सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के साथ करते हैं कि भाई क्या हमें करना चाहिए, किन टॉपिक्स पे हम रिसर्च कर सकते हैं, क्या हमारा आउटलाइन क्या होनी चाहिए, रिसर्च की बॉडी, या कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसकी बॉडी क्या होनी चाहिए, उसकी आउटलाइन क्या होनी चाहिए, इन सब में ये आपकी मदद कर सकता है। आपका रिसर्च क्वेश्चन डिफाइन करने में, जैसे अभी आप इस स्टेज में हैं, कई बार आप गाइड से भी मिलते हैं, बात करते हैं, सीनियर स्कॉलर से भी मिलते हैं, बात करते हैं कि हमें कैसे करना चाहिए, क्या टॉपिक फाइनल करना चाहिए, या इंटरेस्ट एरिया क्या क्या है, या आपकी फील्ड में क्या क्या रिसर्च टॉपिक हो सकते हैं, फिर उनमें से आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, उन ब्रॉड एरियाज के अंदर फिर क्या क्या रिफाइनमेंट हो सकते हैं। क्योंकि टॉपिक फाइनल करना बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट टास्क है। क्योंकि मैं जब लास्ट में जुड़ा था उस वक्त प्रज्ञा मैम अपना लेक्चर दे रहे थे, तो प्रज्ञा मैम ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, जो कि बाद में बहुत लोगों को प्रॉब्लम इसमें आती है, कि सिनॉप्सिस बनाने के लिए जो अभी आपको टाइम मिला है, इस वक्त आप उस पर प्रॉपरली वर्क अपन नहीं करें अगर, और उसके बाद में जल्दबाजी में कोई भी टॉपिक फाइनल कर लें, और सिनॉप्सिस के अंदर उसको कैसे आप हाइपोथेसिस अपनी बना, हाइपोथेसिस फ्रेम कर लें, और फिर बाद में जब एक्चुअल में उस पर वर्क करने लगे तो आपको लगे यार ये तो टॉपिक ही गलत है, या इससे रिलेटेड है, मेरे ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स गलत बन गए, या रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को जिस तरीके से अपन हाइपोथेसिस बनाई वो गलत बन गई। तो ये सारी प्रॉब्लम बाद में बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है, और बहुत बड़ा आपके पाँव में ये पत्थर की तरह बंध जाता है एक तरह से। तो सिनॉप्सिस को आपको अभी से उस पर वर्क करें, टॉपिक प्रॉपरली फाइनल करें, प्रॉपरली अपनी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स फाइनल करें, और प्रॉपरली हाइपोथेसिस फाइनल करें, प्रॉपरली किस मेथड से आप उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे वो फाइनल करें। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा ब्रॉड टॉपिक ले लेंगे तो इतना ज्यादा क्या आप इस ड्यूरेशन में कवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बहुत ही छोटा टॉपिक ले लें तो इतना मटेरियल ही नहीं है कि उस पर काम किया जा सके। तो ये सारी बातें आपको सोचनी होंगी। इन काम में भी रिसर्च क्वेश्चंस जनरेट करने में आपकी चैट जीपीटी मदद कर सकता है। लेकिन मदद करने का मतलब ये नहीं है कि जो गाइड की इंपॉर्टेंस है वो कम हो जाएगी, पर ये आपको सजेशन बहुत सारे दे सकता है कि भाई इस तरीके से काम किया जा सकता है। कंडक्ट अ लिटरेचर रिव्यू, जीपीटी आपके लिए रेलिवेंट साइंटिफिक लिटरेचर पर्टिकुलर टॉपिक पे सर्च करने में मदद कर सकता है, आपको हाईलाइट लिटरेचर, रेलिवेंट लिटरेचर ढूंढने में मदद कर सकता है, रिसर्च आर्टिकल को समराइज करके आपको दे सकता है कि भाई अच्छा इसका इसके अंदर मेन ये बातें कही गई है। क्योंकि पूरे आर्टिकल्स भी पढ़ने पड़ते हैं जब आप रिसर्च करने जाते हैं तो आपको। और मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पिछला भी वो लेक्चर दिया था कि भाई जोटेरो आपकी मदद कर सकता है, रेफरेंस मैनेजमेंट में काम को बहुत आसान कर सकता है। आज मैं कह रहा हूँ चैट जीपीटी आपका काम बहुत आसान कर सकता है, पर इसका मतलब आप कहीं ये मत समझ जाना कि बहुत आसानी से आपकी पीएचडी होने वाली है, बिल्कुल भी नहीं होने वाली। और आपको जो पढ़ना है वो आपको ही पढ़ना पड़ेगा, आपको जो समझना है वो आपको ही समझना पड़ेगा। जब आप समझ जाओगे ना तब ये दोनों चीजें आपको मदद कर सकती हैं। ऐसा अगर कोई सोच रहा हो कि भाई इसी से मेरी पीएचडी हो जाएगी, तो फिर वो पीएचडी नहीं हो पाएगी, और फिर बहुत बाद में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पढ़ने की जगह तो पढ़ना ही पड़ेगा, टॉपिक भी फाइनल करना पड़ेगा, उस टॉपिक को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे पेपर आपके टॉपिक से रिलेटेड जो है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, तभी उन चीजों में आप आ सकते हो। चैट जीपीटी आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग की मदद से लिटरेचर में क्या रिसर्च गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने में मदद कर सकता है। लेकिन मैंने आपको कहा कि चैट जीपीटी उतना ही जवाब देगा जितने सवाल आप पूछोगे। अब आपके पास में बहुत इंटेलिजेंट कोई व्यक्ति बैठा हो, पर आप उससे बातें कर रहे हो कि भाई ये मौसम क्या हो रहा है, देखो कभी सर्दी हो रही है कभी गर्मी हो रही है, वो कह रहा है हाँ अभी तो ये है, इसका इफेक्ट है उसका इफेक्ट है, तो वो जवाब भी वैसे ही देगा जैसे ही आप उससे बात करोगे। तो
आपके ऊपर सारा दारोमदार है कि क्वेश्चन क्या पूछना है। अब क्वेश्चन क्या पूछना है आपको तभी समझ में आएगा जब आपने लिटरेचर पढ़ा होगा, जब आपको उन चीजों के बारे में जानकारी होगी। जब आप वापस क्वेश्चन पूछेंगे, जब आंसर मिलेगा तो उसके बारे में वापस पढ़ेंगे, तब आप आगे का जान पाएंगे। तो पढ़ना, लगातार पढ़ना बहुत आवश्यक है। डेटा को एनालाइज करने में ये आपकी मदद कर सकता है कि सर्वे या किसी भी दूसरे तरीके से अगर आप डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें ये बहुत मदद कर सकता है। डेटा को इंटरप्रेट करने, एनालाइज करके इंटरप्रेट करने में मदद कर सकता है। विजुअलाइजेशन आपकी फाइंडिंग को जनरेट करके दे सकता है। रिसर्च पेपर का आउटलाइन बना के दे सकता है कि भाई इस तरीके से आप एक रिसर्च पेपर पे काम करिए, ये सेक्शंस इसमें हो सकते हैं, इन मेथड को आप यूज कर सकते हैं, इस तरह के रिजल्ट्स दूसरों के आ रहे हैं। तो इन तरह के डिस्कशंस आप इसके साथ में कर सकते हैं। तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है कि यार मैं किससे पूछूं, किससे बात करूं। तो एक बार इससे बात करो, फिर थोड़ा निकाल के वापस सीनियर्स और गाइड से बात करो, फिर उन्होंने जो कहा वो वापस इससे डिस्कस करो, फिर वापस बात करो। तो बात वहीं आ रही है, डिस्कशन तो करना ही है। लेकिन आपको एक ऐसा इंटेलिजेंट बॉट मिला हुआ है, बॉट का मतलब एक तरह से रोबोट से ही बॉट लिया गया है, चैट बॉट मिला हुआ है जो आपके लिए काम कर रहा है। ठीक है, ये आपके लिए एडिट कर सकता है, प्रूफ रीड कर सकता है, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ग्रामर चेक कर सकता है, क्रॉस चेक कर सकता है चीजों को, नेसेसरी रिविजन्स कर सकता है आपके लिए। तो इस तरीके से अपने को ये हेल्प करता है। अब इतनी सारी चीजें ये करके दे रहा है, तो कई बार अपन सोचते हैं कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज मिल गई है ना, तो अपन सारा का सारा रिसर्च पेपर ही इससे लिख लेंगे। तो अपने मन में ये मिथ्स आ जाते हैं। अपने क्या, जब अपन इसको यूज करने लगेंगे तो लोगों के मन में मिथ आ जाएगा कि यार क्या पता ये सारा काम ये चैट जीपीटी से ही करा रहा होगा। ठीक है, लेकिन चैट जीपीटी से जो काम किया गया है ना, वो अधपकी, वो वैसा ही हो जाता है जैसे यूट्यूब पे खाना बनाना जो सीखते हैं और बाद में कहते हैं गैस पे कढ़ाई रखो, अब इसमें नमक डाल दो, अब इसमें जीरा डाल दो, अब इसको भून लो, अब सब्जी डाल दो और आपकी सब्जी तैयार। अब वो सब्जी उसमें तो अलग दिख रही है, अपने इसमें अलग दिख रही है, क्योंकि अपन ने तो गैस ही ऑन नहीं की। तो वैसा नहीं हो जाए इसमें अपने साथ। ठीक है, क्योंकि वहां नहीं लिखा हुआ था ना किताब में या यूट्यूब पे कि गैस ऑन करनी है, तो अपन ने तो गैस ऑन नहीं की, अपन ने तो कढ़ाई चढ़ा दी और डालते गए सामान। तो चैट जीपीटी अपने लिए साइंटिफिक रिसर्च पेपर अपने आप नहीं लिख सकता। ये आपको असिस्ट कर सकता है कंटेंट जनरेट करने में, आउटलाइन जनरेट करने में, थिंकिंग के अंदर, एनालिसिस के अंदर, पर अपने उस पर नहीं लिख सकता। दूसरा कि ये ह्यूमन रिसर्चर्स को साइंटिफिक रिसर्च में क्या रिप्लेस कर सकता है, तो ये आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। आप, क्योंकि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, और ये सिर्फ वही जवाब दे सकता है जो क्वेश्चन पूछा गया हो, और या फिर जितनी इंफॉर्मेशन इसके अंदर फीड की गई हो। तो जो इंफॉर्मेशन इसमें फीड ही नहीं की गई है उसके बारे में ये कभी जवाब नहीं दे सकता, नई प्रॉब्लम्स को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकता। तो एक ह्यूमन रिसर्चर की एक्सपर्टाइज जो है उसकी और स्किल जो है उसकी जरूरत हमेशा बनी रहती है। चैट जीपीटी जो है वो एनालाइज और इंटरप्रेट कर लेगा डेटा ह्यूमन इनपुट के बिना, तो ये नहीं कर सकता। आपको बताना पड़ेगा कि इस डेटा अगर आपके पास में है भी सही, आपने डेटा निकाल लिया मान लो इसकी मदद से, अब उसके ऊपर क्या प्रोसेसिंग करनी है, उसको किस तरह से एनालाइज करना है और रिजल्ट्स को किस तरह से इंटरप्रेट करना है, वो ह्यूमन जो है वो अपने इंटेलिजेंस से वो करेगा, तभी मीनिंगफुल कंक्लूजन्स पे पहुंच पाएगा। क्या चैट जीपीटी 100% प्लेगरिज्म फ्री कंटेंट जनरेट कर सकता है? चैट जीपीटी जनरेट करता है ओरिजिनल कंटेंट, कुछ हद तक पॉसिबल है, लेकिन सिमिलर और आइडेंटिकल एग्जिस्टिंग मटेरियल को वो यूज करके ही उसे करता है। तो यहाँ पर ये जरूरी हो जाता है कि जहां से वो डेटा जनरेट किया गया है उसको साइट करना और उसको ड्यू जो उसका हक है, उसको रिकॉग्निशन है, वो उसको देना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर आपको ओरिजिनल कंटेंट जहां से कि उसने डेटा जनरेट किया है यही नहीं पता होगा, तो फिर आप कैसे तो उसे साइट करोगे और कैसे उसको करोगे। तो अच्छा क्या होता है कि आपको ये पता हो कि यार ये मेरे काम का आर्टिकल है, ये मेरे काम का वर्क है, उसको आप एआई की मदद से, चैट जीपीटी की मदद से या चैट बॉट की मदद से, फिर आप उस कंटेंट को अपने हिसाब से उसकी मदद से रिफ्रेश कर रहे हो, तो फिर आपके पास में आपको ध्यान है कि भाई ये डेटा जो इसने रिफ्रेश किया है ये यहाँ से मैंने लिया है, तो आप उसको वहां से साइट कर पाओगे, आप उसको
प्रॉपरली रेफरेंस में ऐड कर पाओगे, तो उसकी मदद से जब आप प्लेगरिज्म चेक होगा तो उसमें नहीं आओगे। दूसरा, एक प्रॉपर साइटेशन आप दे पाओगे। कई बार अदरवाइज ऐसा होगा कि बाद में कोई इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपने जनरेट किया है और आप उसके ऊपर जैसे ही आपका वो रिजल्ट पॉपुलर होगा तो कोई दूसरा आ जाएगा कि यार ये तो इन्होंने यूं का यूं मेरे उसमें से कॉपी किया है, और उसका पब्लिश्ड आर्टिकल 2 साल पुराना पब्लिश्ड वर्क होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप पे प्लेगरिज्म का इल्जाम लग जाएगा। तो यूज करते वक्त अपने को सावधानी रखनी है। इट इज अप टू अस कि हाउ वी आर यूजिंग इट, एंड वी मस्ट बी केयरफुल इनफ कि दैट वी आर यूजिंग दिस, सो वी मस्ट यूज इट एज अ रिसर्च असिस्टेंट, नॉट एज अ researcher. ChatGPT can write in any scientific field. Obviously no. बहुत सारी डाइवर्स फील्ड्स हैं और धीरे धीरे ChatGPT एक्चुअल में इसलिए बनाया भी नहीं गया है कि एकेडमिक रिसर्च करे। तो ChatGPT जो है उसके पास में जो इंफॉर्मेशन है उसी पे वो वर्क कर सकता है। हर साइंटिफिक फील्ड में वो काम नहीं कर पाएगा, लेकिन डेफिनेटली वो कुछ हद तक सब में मदद कर सकता है। किसी में ज्यादा मदद कर पाएगा, किसी में कम मदद कर पाएगा। क्या ChatGPT जो कंटेंट जनरेट करता है वो फ्री, एरर फ्री और मिस्टेक्स से विदाउट मिस्टेक्स होते हैं? तो इसका भी आंसर नो है। इवन ChatGPT पे इस तरह के रिसर्च आर्टिकल लोगों ने बना के पब्लिश किए हैं कि ChatGPT जो रेफरेंसेस जनरेट करता है ना, वो भी फेक होते हैं कई बार जो वो जिस न्यूज़पेपर का हवाला देकर कि इस न्यूज़पेपर में ये कहा गया है, वो एक्चुअल में जब आप जाके देखते हैं तो वहां पे उस तरह की कोई इंफॉर्मेशन उस न्यूज पेपर में या उस न्यूज आर्टिकल में नहीं होती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो भी डेटा इसकी मदद से जनरेट किया जाए उसको आपको चेक करना पड़ेगा, उसका रेफरेंस जो दिया गया है उससे चेक करना पड़ेगा, और बेहतर ये होगा कि आप द्वारा जो रेफरेंस है उसको यूज करते हुए उसे काम में लिया जाए। तो ChatGPT डेफिनेटली जो चैटबॉट्स हैं दिन ब दिन इनकी एक्यूरेसी और क्लैरिटी इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन ये फ्री ऑफ एरर और फ्री ऑफ मिस्टेक्स नहीं है, तो इसका ध्यान आपको हमेशा रखना पड़ेगा। जो ChatGPT है वो कंटेंट जनरेट कर सकता है और ह्यूमन से बेहतर रिटन कंटेंट जनरेट कर सकता है। तो आपको एक बात बता दूं, ये मशीन लर्निंग की बेसिस पे करता है, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस पे करता है, ये ह्यूमन को इमिटेट करने की कोशिश करता है कि मैं ह्यूमंस की तरह जवाब दूं। ये इसको इस तरीके से बनाया गया है कि नेचुरल इसकी लैंग्वेज लगे कि ह्यूमन ही इसका आपको जवाब दे रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इमिटेट करने की कोशिश कर रहा है, नकल करने की कोशिश कर रहा है, किसकी? ह्यूमन की। अगर ये उसी की नकल कर रहा है तो उससे बेहतर कैसे प्रोड्यूस कर पाएगा? ठीक है। कई बार अपन जब किसी और का पढ़ के लिखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसी तरह का लिखते हैं जैसा उसने लिखा है। अगर हमें खुद लिखना है तो हमें बहुत सारा पढ़ना होगा, फिर उस पर क्रिटिकल थिंकिंग करनी होगी, फिर अपनी क्रिएटिव सोच को उस पर लगाना होगा। उसके बाद जो हम आउटपुट जनरेट कर पाएंगे वो हाई क्वालिटी का आउटपुट होगा। तो ChatGPT जो है वो ह्यूमन से बेहतर कंटेंट जनरेट नहीं कर सकता, ह्यूमन द्वारा जनरेट कंटेंट को ही डिफरेंट तरीके से प्रोड्यूस करता है। ChatGPT जो है वो कंटेंट को अच्छे बहुत परसुएसिव वे में लिख सकता है ह्यूमन रिटन कंटेंट से, लेकिन फैक्ट ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है और इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो टेक्नोलॉजी के पास उतनी नहीं है जितनी ह्यूमंस के पास है। तो उस कम्युनिकेशन स्किल और ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिलाकर जब लिखा जाता है तो किस बात पर कितना वजन देना है ये अपने को पता चलता है, लेकिन मशीन को ये चीज समझने में अभी बहुत टाइम लग जाएगा। तो ChatGPT का जो कंटेंट है वो परसुएसिव हो सकता है, लेकिन ह्यूमन रिटन कंटेंट से परसुएसिव ज्यादा हो इसकी संभावना नहीं है। यानी कि अगर आप खुद का काम करेंगे तो वो इससे बेहतर होगा, इसकी प्रबल संभावना है। ठीक है। ChatGPT कंटेंट जो है वो कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव हो। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई बायस नहीं हो, उसमें कोई पर्सनल फेवरेटिज्म नहीं हो या मैनिपुलेशन नहीं हो। ठीक है। सब्जेक्टिविटी, जैसे आप ऑब्जेक्टिव आंसर लिखते हैं
किसी भी क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव आंसर में 4 ऑप्शन होते हैं, तो आप उसी में से सेलेक्ट करते हैं कि भाई इन चारों में से एक आंसर है। तो आंसर ऑब्जेक्टिव है कि भाई हाँ ये चीज है तो यही है, यस है तो यस है, नो है तो नो है, गुड है तो गुड है, बैड है तो बैड है। लेकिन जब आप सब्जेक्टिव आंसर लिखते हैं तो वो सबका अलग होता है। वो कोई कहता है कि इस घटना के अंदर इस तरीके से हुआ, इसका ये पहलू भी है जो कि पहलू सही नहीं है, लेकिन इतनी बुराइयों के बावजूद भी इस घटना में ये पहलू है, तो इस पहलू से अगर हम देखें तो ये सही भी है। तो जब हम एक्चुअल रिसर्च करते हैं या रियल लाइफ सिनेरियोज में जाते हैं, तो रियल लाइफ सिनेरियोज में ऑब्जेक्टिविटी इतनी काम नहीं करती। अगर आप ऑब्जेक्टिवली सोचोगे तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो बिल्कुल गलत हैं, लेकिन जब आप ओवरऑल सोसाइटियल पॉइंट ऑफ व्यू से जब उसे देखते हो या बर्ड आई व्यू से उसे देखते हो, तो वो इम्पोर्टेंट होता है, सब्जेक्टिव होने के बावजूद भी इम्पोर्टेंट होता है। तो जो चैट जीपीटी भी जनरेट करता है डेटा, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता, उसमें बायस होने की संभावनाएं रहती हैं उसके अंदर, क्योंकि वो डेटा तो कहीं से रीड कर रहा है, कहीं से ले रहा है, उसके बाद उसे प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर जो पहले का प्रोड्यूस किया गया डेटा है उसमें बायस है, तो वो उस बायस ही रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। क्या चैट जीपीटी नॉलेज और रिसर्च की कमी को पूरा कर सकता है क्या? तो चैट जीपीटी नॉलेज की कमी या रिसर्च में जो आपकी कमी है उसको पूरा गैप फिल नहीं कर सकता। ये कंटेंट जनरेट कर सकता है रिसर्च के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए, लेकिन रिसर्चर की अपनी एक्सपर्टाइज, अपनी फील्ड की नॉलेज और जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन उसको फील्ड में जाकर मिलती है, वो ये उसकी कमी को पूरी नहीं कर सकता। ठीक है। तो चैट जीपीटी एक अच्छा रिसर्च असिस्टेंट तो बन सकता है, लेकिन ये एक अच्छा रिसर्चर नहीं है। इसके भरोसे कोई अपनी रिसर्च ना करे, पर इसकी मदद जरूर लेके कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर है। जैसे गूगल एक वक्त पे सर्च इंजन का फ्यूचर बना था, उसी तरह ये आने वाला फ्यूचर है। पुराने लोगों ने जैसे गूगल को कहा कि भाई हमने तो 100 किताबें, 25 लाइब्रेरी में गए, 100 किताब पढ़ी और फिर डेटा लिखा, एक एक कैलकुलेशन हाथ से की। कंप्यूटर से आने वाले पहले रिसर्चरों ने कहा हमने एक एक चीज को हाथ से जोड़ा, हमने एक एक कैलकुलेशन हाथ से की, फिर रिसर्च प्रोड्यूस की। और आज का रिसर्चर जो है वो तो 2 मिनट में कैलकुलेट कर रहा है। तो जब वो 2 मिनट में कैलकुलेट कर रहा है तो वो 10 कंपनी की जगह 100 कंपनी का डेटा कर रहा है। जब वो 2 मिनट में कर रहा है तो वो एरिया उसका बहुत वाइड है, उसका काम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हो रहा है। इसी तरह जब आप चैट जीपीटी को यूज करके काम करेंगे तो जो चीज, जैसा कि मैंने आगे उसमें भी कहा कि आपको ज्यादा क्रिएटिव काम करने के लिए समय मिलेगा, ज्यादा काम करने के लिए समय मिलेगा। तो इसी तरह ये आज की तारीख में ऐसा माना जा रहा है कि ये चैट जीपीटी जो है वो आने वाला फ्यूचर है, चाहे आपको पसंद आए चाहे नहीं आए। इसकी एआई की और चैट जीपीटी की या चैट बॉट्स की एंट्री एकेडमिक रिसर्च में हो चुकी है। अब इसको किस तरह से कंट्रोल, जैसे जंगली घोड़े को कंट्रोल करके काम में लेते हैं तो अच्छी सवारी बनती है, वैसे ही किस तरीके से इसको काम में लिया जाएगा उस पर बहुत सी चीजें डिपेंड करती है। और आने वाले समय में उसको किस तरीके से देखेंगे वो आप और हम दोनों देखेंगे। तो अब अपन, मैं स्क्रीन एक बार प्रेजेंट करता हूं मेरी, स्टॉप करके। तो और अब जो भी कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल पे कर रहे हैं तो वो एक बार करके इसको देखें या मेरे साथ में इसको समझें क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. chat.openai.com ओपन एआई कंपनी द्वारा चैट जीपीटी बनाया गया है। ठीक है। अब इसका पेड वर्जन जो है वो चैट जीपीटी 4 एंड अबव आ रहा है। बहुत सारे जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है वो भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। खान एकेडमी ने अपना खुद का, खान सर को सभी जानते होंगे, एक फैंसी, एक
एक वॉलेट सेकंड, इसकी आवाज आ रही है। अरे माइक बंद कर दो ना। प्रशांत राव जी, मैं उनको We बोल know रहा हूँ माइक any- बंद कर दें। हाँ कर दिया। प्रशांत राव जी माइक बंद करें। मैंने उनको कहा है सर माइक अच्छा, बंद आपने ही उनको कहा है क्या? ठीक है, चलिए सभी बंद कर दें। अब इस पे आ जाते हैं अपन वापस। कहाँ थे अपन? तो जो 4 एंड अबव है उसको खान एकेडमी को सभी जानते होंगे। खान सर जो क्लासेस लेते हैं ऑनलाइन भी, उन्होंने भी अपना चैटबॉट बना के इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है और किस हद तक एजुकेशन में और एकेडमिक्स में इसका रोल रहने वाला है, तो वो हम आने वाले समय में जल्दी देखेंगे। तो अब जैसे ही मैंने ये chat.openai.com खोला, तो इसके अंदर लॉगिन का ऑप्शन आता है। तो लॉगिन हम ऑलरेडी हो रखे हैं मेरे ईमेल अकाउंट से, तो उसके बाद में ये स्क्रीन आ जाती है। ठीक है, तो इसमें हमने न्यू चैट करते हैं। कल ही मैंने इसको करके देखा था, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है यस्टरडे। इसमें मैंने डाला मैनेजमेंट रिसर्च टॉपिक्स, पर हम आज बिल्कुल फ्रेश इससे बात करेंगे। अब आप देखिए कि ये क्या क्या कर सकता है। ठीक है, मैंने लिखा हेलो, तो ये लिख रहा है हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, आज मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो मैंने लिखा कि कैन यू हेल्प मी इन फाइनलाइजिंग माय रिसर्च टॉपिक, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये मुझे जवाब दे रहा है, ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी टू हेल्प यू, मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए। कुड यू प्रोवाइड मी सम इंफॉर्मेशन, कि तुम्हारे इंटरेस्ट क्या है, फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, कुछ इनिशियल आइडियाज जिसके बारे में आप रिसर्च की सोच रहे हो, ताकि मैं बेहतर समझ सकूं कि आपकी जरूरतें क्या है और उस हिसाब से सजेशन दे सकूं। ठीक है, तो कोई अपने रिसर्च टॉपिक में इसको देखना चाहता है, हेल्प इसकी? कोई फील्ड एक बताइए, एक फील्ड। International relations. पार्डन? International relations. इंटरनेशनल रिलेशंस। चलिए, मैम ने कहा इंटरनेशनल रिलेशन, आई वुड लाइक टू नो अबाउट रिसर्च स्कोप इन इंटरनेशनल रिलेशंस। अब मैं आपको पहले भी बोला, अब भी बोल रहा हूं कि ये उतना ही अच्छा है जितने अच्छे आप हैं। जिस क्वालिटी के क्वेश्चन आप रेस करेंगे उस क्वालिटी के ये आंसर देगा। ठीक है, तो मैंने इसको कहा कि भाई रिसर्च स्कोप इंटरनेशनल रिलेशन में बताइए, तो इसने मुझे अब ये अपने सजेशंस दे रहा है। लेट इट कंप्लीट इट्स आंसर, उसके बाद में हम इस पे बात करते हैं। अब देखिए आप, इसने क्या कहा, इसने कहा कि इंटरनेशनल रिलेशंस में आप पहला, इसने कहा कि बहुत सारे डायनेमिक फील्ड हैं और ब्रॉड एरियाज हैं। कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज हैं, जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स की ग्लोबल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ सकती हैं। सिविल वॉर्स, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, पीस मेकिंग ऑपरेशन, आर्म कंट्रोल। इसके अलावा इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी पे रिसर्च की जा सकती है, जिसमें फाइनेंशियल एड, ग्लोबल फाइनेंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस पे काम है। देन ग्लोबल गवर्नेंस पे काम हो सकता है कि किस तरह स्टेट्स, नेशंस या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं या नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, माइग्रेशन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस हो सकता है, जिसके अंदर हम कंडक्ट ऑफ डिप्लोमेसी या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ स्टेट एंड नेशंस पे काम कर सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी की फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होता है उस पे काम कर सकते हैं। डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस प्रैक्टिसेस, डिप्लोमेटिक हिस्ट्री, डिप्लोमेसी इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इन पे काम हो सकता है। इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स पे काम हो सकता है। रिसर्च टॉपिक्स जैसे कि लीगल रिजीम्स, ह्यूमन राइट ट्रीटीज, इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस, ह्यूमैनिटेरियन लॉ और इंटरनेशनल लॉ के एनफोर्समेंट पे काम हो सकता है। रीजनल स्टडीज हो सकती हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स की, जैसे मिडल ईस्ट, ईस्ट एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप, साउथ एशिया।
तो उस पे काम हो सकता है। सिक्योरिटी डायनामिक्स या वहाँ की पॉलिटिक्स या वहाँ की इकोनॉमिक रिलेशन या वहाँ की बायलैटरल ट्रेड, उस पे काम हो सकता है। क्रिटिकल थ्योरी और पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज हो सकती हैं। ठीक है, तो आपने जिसने क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कोई रिसर्च टॉपिक सोचा है इंटरनेशनल रिलेशंस में? क्या वो यहाँ पे आया है? यस सर, रीजनल स्टडीज का सोचा था, ये आया है रीजनल स्टडीज का सोचा था आपने, किस कंटेक्स्ट में? सर, इकोनॉमिक कॉन्टेस्ट में। ठीक है, तो अभी आप देखिए कि इसने रीजनल स्टडीज में आपको क्या क्या दिया है। अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी डायनामिक, इकोनॉमिक रिलेशन। ये इकोनॉमिक रिलेशन के ऊपर आपने सोचा था, राइट? यस सर, यस सर। तो अब हम इसी पे सर इसको अब आगे। स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा। मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है सबको या एक को? सर विजिबल हो रहा है visible ठीक है, विजिबल है। तो देखिए, इन्होंने कहा रीजनल स्टडीज पे मैंने सोचा था, तो मैं लिख रहा हूं व्हाट अबाउट रिसर्च इन रीजनल स्टडीज। अब यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे इसने ये सारे पॉइंट्स बताए, तो जब आप इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो आप ऑब्वियसली, क्योंकि उस सब्जेक्ट से हैं, सब्जेक्ट में आपने पीजी किया है, यू आर पोस्ट ग्रेजुएट इन दैट सब्जेक्ट, तो उन टॉपिक्स के बारे में आप जानते होंगे जो ये बोलेगा। उसमें से आपको ये सोचना है कि यार मेरा इंटरेस्ट एरिया क्या है, या क्या मेरे कैपेबिलिटीज के हिसाब से सही रहेगा, किसके अंदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इजीली। वो सब बातें सोचते हुए, गाइड से भी आप इन पे चर्चा करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तो व्हाट अबाउट रिसर्च इन रीजनल स्टडीज पे मैंने इसको क्वेश्चन पूछा। ये नीचे आंसर दे रहा है, ठीक है, मैं ऊपर पढ़ रहा था इसलिए ये लिख रहा है यहाँ पे। इसने जवाब दे दिया है। तो अब हम देखते हैं कि इसने क्या जवाब दिया है कि रीजनल स्टडीज में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो इसने कहा रीजनल स्टडी सिक्योरिटी डायनामिक्स पढ़ सकते हो आप, जिसमें इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट, इंटर स्टेट टेररिज्म, आर्म्स प्रोलिफरेशन, पीस बिल्डिंग एफर्ट्स होते हैं। या इंटीग्रेशन एंड कॉपरेशन पढ़ सकते हो, कॉपरेशन इन द इकोनॉमिक कॉपरेशन हो सकता है, पॉलिटिकल यूनियन हो सकता है, सिक्योरिटी अलायंस हो सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे काम हो सकता है रीजन में। गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशंस पे काम हो सकता है कि रीजनल अफेयर्स की कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो गवर्न कर रही हैं, गवर्निंग स्ट्रक्चर क्या है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज कैसी हैं, कॉमन चैलेंजेस क्या हैं कॉपरेशन प्रमोट करने में। ठीक है, रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे काम हो सकता है कि ट्रेड पैटर्न क्या है, इन्वेस्टमेंट का फ्लो कैसा चल रहा है, कैपिटल फ्लो कैसा चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन के जो एफर्ट्स हैं वो अलग अलग पूरे रीजन में किस तरीके से चल रहे हैं। रीजनल आइडेंटिटीज एंड कल्चर्स के बारे में काम हो सकता है, रीजनल इथेनिसिटी, लैंग्वेज, नरेटिव, रीजनल आइडेंटिटी पे, पॉलिटिकल एटीट्यूड, सोशल मूवमेंट्स, इंटर स्टेट रिलेशंस पे काम हो सकता है। रीजनल एनवायरमेंटल चैलेंजेस पे, एनवायरमेंटल चैलेंजेस यानी क्लाइमेट चेंज, नेचुरल रिसोर्स का मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन सब पे काम हो सकता है। यूज ऑफ वाटर वगैरह जो है वो सारा इसमें आ जाएगा। पावर डायनामिक्स पे हो सकता है कि भाई कौन से इन्फ्लुएंशियल स्टेट हैं, हेगेमोनिक राइवलरीज किसकी हैं, अलायंस फॉर्मेशन किस किस के हो रहे हैं, पावर ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, रीजनल पावर का रोल क्या है, इमर्जिंग पावर कौन कौन सी है, एक्सटर्नल एक्टर्स कौन से हैं, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, पीस बिल्डिंग पे काम हो सकता है। तो अब आगे बताइए, आपने अपना क्या टॉपिक सोचा था? सर, इंडो और यूएस का जो ट्रेड पार्टनरशिप है और जो कहाँ तक के डोमिनेंस करता है चाइना उन सबको, तो मैं उन उसके बारे में नहीं सोच नहीं रही नहीं, इंडो यूएस पार्टनरशिप और उसमें हूँ। चाइना का रोल, राइट? हाँ, यस सर। हाँ, ठीक है, तो हम इस पे लिखते हैं हाउ अबाउट, क्या रिसर्च स्कोप इन इंडो यूएस इकोनॉमिक रिलेशन, क्योंकि आपने कहा था इकोनॉमिक पे, यस सर। इकोनॉमिक रिलेशन एंड रोल ऑफ चाइना।
अभी कह रहा है इकोनॉमिक फ्लोज में देखिए बहुत सारे आपको ऑप्शन दे रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये अपन कर क्या रहे हैं, अपन ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं इसके साथ उस टॉपिक के ऊपर, ठीक है, क्योंकि बहुत ब्रॉड टॉपिक होता है। जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम कहाँ थे, आप देखें इंटरनेशनल रिलेशन में थे, ठीक है, तो उसने उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक बताए, तो हमने कहा कि भाई उन टॉपिक्स में से हम रीजनल स्टडीज में जाना चाहेंगे। रीजनल स्टडीज में इसने कहा इतना सब कुछ पढ़ कर सकते हो आप, तो हमने कहा कि भाई हम रीजनल स्टडीज में इंडो यूएस इकोनॉमिक रिलेशन और उसमें चाइना के रोल की बात कर सकते हैं। तो उसने कहा उसके अंदर भी आप ट्रेड रिलेशंस पे बात कर सकते हो। ट्रेड रिलेशन के अंदर क्या क्या आता है कि बायलैटरल ट्रेड कितना हो रहा है, किस किस प्रोडक्ट्स में हो रहा है, कौन कौन से गुड्स हम कर रहे हैं, कौन कौन सी सर्विस कर रहे हैं, जिसको कंपोजिशन कहा जाता है। टैरिफ बैरियर क्या क्या है, यानी कि साफ लिखे हुए ड्यूटीज टैक्स क्या है, और नॉन टैरिफ बैरियर क्या है कि भाई किन टैक्स के अलावा किन तरीके से गुड्स को रोका जा रहा है। फॉर एन एग्जांपल कि भाई जैसे हमारे मसाले जाते हैं तो मसालों पे उन्होंने कह दिया कि भाई चाइल्ड ट्रैफिकिंग या चाइल्ड लेबर से नहीं बना हुआ होना चाहिए। प्लस उन्होंने कहा कि कलर इस ग्रेड का होना चाहिए, जो खाने में कलर डलता है उसका, एक कपड़ा अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसके अंदर जो डाई में केमिकल यूज हो रहे हैं वो इस कैटेगरी से नीचे अगर हो रहे हैं तो ये कपड़े इंपोर्ट नहीं किए जाएंगे। इस तरीके से नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए जाते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लो पे हो सकता है एफडीआई का फ्लो, एफआईआई का फ्लो, इंडिया और यूएस के बीच में कहाँ हो रहा है, इन्वेस्टमेंट के ट्रेंड कहाँ है, किस किस सेक्टर में कितना कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हर सेक्टर के अंदर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स क्या है या ओवरऑल क्या है, एमएनसीज का क्या रोल है, वेंचर कैपिटल फर्म्स का क्या रोल है, वेल्थ फंड्स जो है उनका क्या रोल है, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट्स कितनी हो रही है, इकोनॉमिक कॉपरेशन कितना है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इनोवेशन पे हो सकता है कि जब भी हम किसी डेवलप्ड कंट्री के साथ में काम करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, तभी लॉन्ग रन एडवांटेज होता है, जो कि चाइना को यूएस के साथ में काम करने से हुआ। तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कितनी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो इंडिया और यूएस के बीच में है उनका क्या रोल रहने वाला है, रिसर्च और डेवलपमेंट में कितनी कौन किसको कितना कोलैबोरेट करने वाला है, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट कितने होने वाले हैं, जॉइंट वेंचर्स पे क्या असर पड़ने वाला है, इसकी स्टडी की जा सकती है। एनर्जी कॉर्पोरेशन पे की जा सकती है कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के ऊपर या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ऑयल गैस सेक्टर, इन सब, ये पूरा एनर्जी सेक्टर है। तो एनर्जी सेक्टर में जो हमने कहा ना रीजनल में इंडो यूएस, अब इंडो यूएस में भी एनर्जी कॉर्पोरेशन के ऊपर करेंगे वर्क, या इनोवेशन पे करेंगे, या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे करेंगे, जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन पे करेंगे कि भाई इन दोनों के रिलेशन बनने से जो जियो पॉलिटिक्स है उस पर क्या असर पड़ेगा, यानी पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो इन सब पे इसका क्या इम्प्लीकेशन आने वाला है। क्योंकि यूएस इंडो यूएस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट या बीआरआई प्रोजेक्ट इनिशिएटिव पे हो सकता है। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का इनिशिएटिव है, उसको इंडो यूएस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका क्या असर पड़ेगा, यूएस की जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है जो समुद्र के अंदर खींचतान चलती रहती है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सारे स्टडी के एस्पेक्ट्स बनते हैं इसमें। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पे यूएस और इंडिया के जो टाइज हैं या जो एग्रीमेंट है या जो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ये इतने सारे रिसर्च टॉपिक्स इसमें अपन ने देखे, ठीक है। अब क्योंकि हम और अगर डीप में जाएंगे तो थोड़ा सा अनइंटरेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो अपन ऐसा करते हैं, कोई और टॉपिक लेते हैं। अब किसी और का टॉपिक है, कोई और सोचना चाहता है अपने उस पे? यस सर, चेंज सर मैनेजमेंट। मैंने अभी अभी सर्च कर रहा था आपके साथ साथ ही लैपटॉप पर। हाँ मेरी आवाज आ रही है ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल मैं आ रही है, सेक्रेट प्रशांत जी। ग्रुप्स, मैं एथनोबॉटनी में इंटरेस्ट, मैं बॉटनी से हूँ सर। ठीक है, बस तो एक मिनट यहीं रुक मैं जाइए, आप यहीं रुक ठीक। जाइए, ठीक है। रिसर्च एरियाज इन बॉटनी, स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने बॉटनी की, BOTANY है, तो उसने अपने आप करेक्ट भी कर ली। जैसे ही मैंने
क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि कई बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, नए स्टूडेंट्स हैं जो पीजी करके आए हैं, तो वो एक पर्टिकुलर फील्ड से आए हैं। फॉर एन एग्जांपल या तो स्पोर्ट्स से आए होंगे, इंग्लिश, हिंदी, लिटरेचर से आए होंगे, साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, science. बॉटनी और से आए हैं, मैनेजमेंट से आए होंगे, कॉमर्स से आए होंगे, कॉमर्स में भी अकाउंटिंग, फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंसेज में भी ज्योग्राफी, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप डायरेक्ट वहां से भी शुरू कर सकते हैं कि भाई क्या फील्ड में हमने लिखा बॉटनी में क्या क्या है, तो इसने कहा बॉटनी में प्लांट फिजियोलॉजी है, जिसमें हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, न्यूट्रिएंट अपग्रेड, लाइट, टेम्परेचर, वाटर का इम्पैक्ट प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर। प्लांट इकोलॉजी है, तो उसके अंदर प्लांट इकोलॉजी का मतलब क्या हो गया कि भाई बहुत सारे जो डिफरेंट प्लांट्स उग रहे हैं, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, उसका क्या इम्पैक्ट है इकोसिस्टम के ऊपर, पूरे के ऊपर। तो इसमें कम्युनिटी डायनामिक, इकोसिस्टम सक्सेशन, रोल ऑफ प्लांट इन बायोकेमिकल, बायोजियो केमिकल साइकिल्स, फिर प्लांट टेक्सोनॉमी, सिस्टमेटिक्स है, प्लांट जेनेटिक्स एंड जियोनॉमिक्स है, प्लांट मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी है, प्लांट इवोल्यूशन, डाइवर्सिटी है, अदर ऑर्गेनिजम्स, इंटरेक्शन विद अदर ऑर्गेनिजम्स है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिसिन है, प्लांट कन्वर्सेशन, बायोडाइवर्सिटी, इथनोबॉटनी एंड ट्रेडिशनल प्लांट नॉलेज है। तो प्रशांत जी, इनमें से आपका टॉपिक आ रहा है निकल के? हाँ सर, बिल्कुल आ रहा है। मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मैं आप समझ गया था, आपने जब मुझे रोका। अब मैं ये कहना चाहता सर, मेरा जो टॉपिक है वो इतना मतलब अभी जो चैट जीपीटी ने जो बताया, वो बताया कि इस पर अभी बहुत कम रिसर्च हुई है, और पर्टिकुलर जिस एरिया में मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ उस पर भी बहुत कम रिसर्च हुई है। बट इसने ये भी, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी कुछ बाउंड्रीज है। तो इसने मुझे ये भी कहा, इसने मुझे सजेस्ट किया कि यू मे सर्च ऑन द गूगल स्कॉलर, और जो रिलेटेड जो है ना उस पर सजेस्ट किया कि वहां भी आप एक बार इसको टॉपिक्स को इसको चेक कर लीजिएगा कि हो सकता है वहां पर इस पर रिसर्च पेपर या इस तरह की चीजें हुई हो। बट चैट देखो, मैं जीपीटी के आपको एक पास बात में बताता हूँ प्रशांत जी, बहुत नया टॉपिक कोई निकल के आए तो वो तो या तो कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से हो सकता है ना, या कोई बिल्कुल ही फ्रेश जानकारी जो कि साइंटिस्ट को पहले नहीं थी अब हुई है, चाहे वो कोई प्लांट्स के बारे में हो जैसे आपके केस में, या फिर कोई नहीं, उस पर्टिकुलर एरिया में मतलब रिसर्च तो बहुत हुई है सर उस टॉपिक पर, बहुत सारी नहीं, रिसर्च वही पेपर भी मैं उसने कह रहा मुझे हूँ बताया। कि जो वो जी सर। एडवांसमेंट है ना, वो एडवांसमेंट पे टॉपिक कम हो सकती है कि भाई हम इस फील्ड में अब आगे बढ़ रहे हैं, इस पर रिसर्च कम हुई है। अदरवाइज उस टॉपिक पे तो कंटिन्यूअसली रिसर्च हो रही है, एक्सप्लोर कर रहे हैं, आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ पे अपना टॉपिक नहीं डिस्क्लोज करना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर बिल्कुल सर। ये चीज हमें समझ आ रही है कि ये किस तरह से हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग में मदद कर सकती है, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करके उस टॉपिक पे पहुंच गए, सपोज जैसे कि हम ये देखते हैं, चलिए कि हम स्पोर्ट्स में क्या क्या रिसर्च कर सकते हैं। तो इसने कहा एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पे आप कर सकते हैं, बायोमैकेनिक्स पे कर सकते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पे कर सकते हैं, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन पे कर सकते हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड इंजरी प्रिवेंशन, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, स्पोर्ट टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, एडेप्टेड फिजिकल एक्टिविटी एंड पैरालंपिक स्पोर्ट्स। तो आप देखिए कि ये आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग में इतनी Yes, मदद sir. करता है, इतने टॉपिक्स आपको सजेस्ट कर देता है कि आप अगर नए भी हैं बिल्कुल फील्ड में, तो आपको ये समझ आता है कि यार इतने डाइवर्स टॉपिक्स पे हम काम कर सकते हैं। और जब आपको टॉपिक सर ये टॉपिक्स हमारे लिए, हाँ जी सर, स्पोर्ट्स वालों के लिए ये टॉपिक्स नए नहीं होंगे, लेकिन जैसे हम स्पेसिफिक पूछे इससे कि हमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में ही क्या क्या टॉपिक्स है, तो और सब टॉपिक्स बताता है। जैसे हमें तो ये टॉपिक्स पता है, स्पोर्ट्स मेडिसिन, अडेप्टेड फिजियोलॉजी, या फिर अच्छा हाँ वही चीज की, और इसमें डेप्थ में बताएगा सर हमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में ही क्या और रिसर्च कर सकते हैं। देख लेते हैं मैडम, देख लेते हैं, देखें आपके सामने है जो है। सर एक्चुअली मुझे आपका है ना प्रेजेंटेशन विजिबल नहीं है, बट स्टिल आई एम लिसनिंग की बड़ा इंटरेस्टिंग है। बाकियों को विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, तो बिल्कुल मैं सर, आपको visible पढ़ के है। बताता हूँ थोड़ा सा, ज्यादा तो हम इस पे बात नहीं करेंगे, आपका एरिया है।
स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में इसने हाँ जी। हमें 10 से ज्यादा वो बता दिए। उसने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में बता रहा है कि परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट पे काम किया जा सकता है, गोल सेटिंग, विजुअलाइजेशन, सेल्फ टॉक, अराउजल रेगुलेशन, अटेंशन एंड फोकस, प्री परफॉर्मेंस रूटीन। फिर मोटिवेशन और अचीवमेंट पे काम किया जा सकता है, मोटिवेशन, गोल ओरिएंटेशन, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। फिर साइकोलॉजिकल स्किल्स ट्रेनिंग पे काम किया जा सकता है, मेंटल टफनेस पे, रेजिलियंस पे, कोपिंग एबिलिटीज पे, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, टीम डायनामिक्स और कोहेजन पे काम किया जा सकता है कि टीम डायनामिक्स कैसे बनाई जाए, कोहेजन कैसे किया जाए, स्पोर्ट्स टीम की परफॉर्मेंस, लीडरशिप रोल्स, कम्युनिकेशन पैटर्न, रोल क्लैरिटी, ग्रुप नॉर्म्स। फिर इमोशनल रेगुलेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट है। फिर इंजरी प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन है, एथलीट डेवलपमेंट एंड ट्रांजिशन है। इन सब में जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं उसको ये aspects हाईलाइट है। कर करके इसने यहाँ पर हाँ जी। लिखा है ओके सर। है ना। तो इसके अंदर फर्दर आप फिर आगे से आगे अपना एरिया डिफाइन कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ ठीक है? जी सर। सपोज Thank you, sir. अब मैं इस पे आ जाता हूँ कि इंजरी प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन, इसके साइकोलॉजिकल Rehabilitation. एस्पेक्ट्स के ऊपर मैं आगे काम करना चाहता हूँ या एक रिसर्च पेपर लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको yes, कह रहा sir. हूँ रिसर्च पेपर ऑन, या मैं रिसर्च पेपर ऑन इंजरी प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन मैंने लिखा। एक सेकंड Yes, नीचे sir. चलना पड़ेगा, ये नीचे लिख रहा होगा। तो इसने मुझे एक पूरा फॉर्मेट बना के दे दिया कि किस तरीके से रिसर्च पेपर लिखा जाएगा। बिलो इज द आउटलाइन दैट कैन हेल्प यू स्ट्रक्चर योर पेपर इफेक्टिवली। सबसे पहले टाइटल इसने मुझे सजेस्ट कर दिया, इंजरी प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन स्ट्रेटजीज इन स्पोर्ट, अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू। क्योंकि मैंने खुद का काम नहीं किया, ना मैंने इसको बताया कि मैंने इस तरीके से काम किया, ये डेटा मेरे पास है, तो इसने जो सजेशन दिया है वो कहा रिव्यू करो आप, जो ऑलरेडी काम हो चुका है उसको रिव्यू करके एक पेपर बना, जिसका Yes, एब्स्ट्रैक्ट ऑब्वियसली एब्स्ट्रैक्ट अच्छा खासा अपन को Abstract 1000-2000 वर्ड में लिखना होता है, पर क्योंकि हमें सिर्फ आउटलाइन दे रहा है तो इसने एब्स्ट्रैक्ट में लिखा कि वी प्रोवाइड अ कंसाइज समरी ऑफ पेपर इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ इंजरी प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन इन स्पोर्ट्स, की फाइंडिंग एंड इम्प्लीकेशन फॉर प्रैक्टिस। ये चीजें हम एब्स्ट्रैक्ट में इंक्लूड करेंगे, ऐसा बोल रहा है ये। Yes. फिर इंट्रोडक्शन में हमें लिखना है टॉपिक ऑफ इंजरी प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन को इंट्रोड्यूस करिए, उसकी इंपॉर्टेंस बताइए, सिग्निफिकेंस बताइए, एथलीट्स की एथलेटिक परफॉर्मेंस, एथलीट सेफ्टी और लॉन्ग टर्म हेल्थ में, और ओवरव्यू दीजिए एम्स और पेपर का स्ट्रक्चर जो है वो इंट्रोडक्शन में बताइए। फिर ये कह रहा है Yes, कि sir. लिटरेचर रिव्यू करिए। तो रिव्यू में क्या क्या रिव्यू करेंगे, तो ये कह रहा है डिस्कस एपिडियोमियोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। उसके बाद में रिव्यू करिए थ्योरीज और मॉडल, इंजरी कॉजेशन क्या होता है, जैसे कि Yes, sir. बायोकेमिकल, साइकोलॉजिकल, सोशो कल्चरल फैक्टर्स जो इंजरी में कंट्रीब्यूट करते हैं। एविडेंस बेस्ड स्ट्रेटजीज एक्सप्लोर करिए कि इंजरी कैसे प्रिवेंट हो सकती है। प्री पार्टिसिपेशन स्क्रीनिंग, वार्म अप प्रोटोकॉल, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन। फिर ये कह रहा है रिव्यू करिए प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन, स्टेजेस ऑफ इंजरी हीलिंग, रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज, रिटर्न टू प्ले क्राइटेरिया। इस तरीके से इसने लिटरेचर पूरा रिव्यू सर बताया। मेथोडोलॉजी इसने कहा है आप डिस्क्राइब करिए मेथोडोलॉजी को जो कि लिटरेचर रिव्यू के दौरान आपने फॉलो की है, कि कैसे आपकी क्या सर्च की क्या स्ट्रेटजीज थी, कौन कौन से डेटाबेस यूज किए, किस क्राइटेरिया के Yes, sir. बेसिस पे आप पेपर को रिव्यू में इंक्लूड किया, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे आपने पेपर को एक्सक्लूड किया। फिर एक्सप्लेन करिए रेलेवेंट स्टडीज जो आपने आइडेंटिफाई की, सेलेक्ट की और सिंथेसाइज की। फिर रिजल्ट्स बताइए कि भाई जो जो स्टडीज आपने सेलेक्ट कर ली अपने रिव्यू पेपर के लिए उनमें क्या क्या की फाइंडिंग्स है उसको समराइज करिए। सर मैथोडोलॉजी के बाद में आपने क्या बोला, मैथोडोलॉजी के बाद में हमें क्या करना है? मेथोडोलॉजी के बाद में आप रिजल्ट्स बताएंगे, जो जो आपने Results. स्टडी सेलेक्ट कर ली है ना उसके अंदर हाँ. क्या क्या की फाइंडिंग है। हर स्टडी ने कुछ फाइंड आउट किया होगा, हर पेपर का कोई आउटपुट होगा,
तो उस आउटपुट हाँ, तो को डेटा conclusion- कलेक्शन। प्री प्रिवेंशन और क्या conclusion क्या है ना? रिहेबिलिटेशन स्ट्रेटजीज उन्होंने बताई हैं। सर ये रिजल्ट्स कंक्लूजन कह सकते हैं, यहाँ पे कंक्लूड करना है ना? नहीं नहीं नहीं, ये रिजल्ट्स तो ये है कि उन्होंने क्या क्या रिजल्ट दिए हैं। जब आप उनके अच्छा, रिजल्ट्स बता दोगे variables। फिर उस पर डिस्कस हाँ। करोगे, डिस्कशन है, और फिर जैसे डिस्कस करने डेटा के बाद कलेक्शन, आप अपने शब्दों में कंक्लूड करोगे उन सारी रिसर्च को 5-10 लाइन में। ओके, ठीक है सर। सर ठीक है, आपने तो बोला मुझे एब्स्ट्रैक्ट कितना बड़ा लिखना है सर? आपने एब्स्ट्रैक्ट कहा हजार। इन जनरल सब कॉन्फ्रेंस या उसका अपना अपना होता है। तो किसी में 1000 तो वर्ड्स सर का भी होता है, किसी में सेमिनार्स, 1000 वगैरह में वर्ड्स का भी वो होता है कहीं कहीं पे। वो डिपेंड करेगा कि आप जो पेपर बना रहे हो किस कॉन्फ्रेंस किस जर्नल का बना रहे हो। इन जनरल आप अपनी फील्ड के अंदर जब रिसर्च पेपर्स पढ़ोगे तो आपको पता पड़ हाँ जाएगा जी, कि भाई एब्स्ट्रैक्ट कितने पेज है। कई बार छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट भी होता है, 500 वर्ड का भी होता है, कहीं कहीं पे एब्स्ट्रैक्ट 2-2 हजार वर्ड की भी होते हैं जहाँ बड़े पेपर होते हैं। इन ठीक है जनरल सर। नहीं होते बड़े एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट छोटा ही होता है। अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक है, फिर थैंक यू सर। रेफरेंसेस और एडिशनल कंसिडरेशंस हम लगाएंगे। तो अब आप देखिए हाँ कि जी, आपके हाथ में जो चीज है, जिस चीज को मैंने आपको आज एक्सपोज किया है, वो आपको किस तरह हेल्प कर सकती है। लेकिन बात वहीं की वहीं आ जाएगी कि किस क्रिएटिविटी से आप आए हैं, कितनी बेसिक नॉलेज लेकर आप आए हैं, उसी तरह से आप क्वेश्चन पूछ पाएंगे। और ये आपको सेक्शन वाइज भी जब आप इस पे काम करोगे ना, कि अलग अलग सेक्शंस को पढ़ने अलग अलग सेक्शंस के ऊपर जब आप जाओगे तो ये अलग तरीके से आपको जवाब देगा। तो आपको ये हेल्प तो बहुत कर सकता है, लेकिन पढ़ाई आपको खुद करनी पड़ेगी। जैसा कि प्रशांत जी ने कहा कि गूगल स्कॉलर पे भी हमें जाना पड़ेगा और दूसरे सर्च इंजन्स पे भी जाना पड़ेगा। अलग अलग डेटाबेस से हमें पेपर कलेक्ट करने पड़ेंगे या लिटरेचर को रिव्यू करना पड़ेगा। वो ये आपके लिए नहीं करेगा। पढ़ाई आपको खुद को ही करनी पड़ेगी, चाहे कितने ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ जाओ। अल्टीमेटली आप किस तरीके से पढ़ते हैं, आप उसको किस तरीके से समझते हैं, उतना ही ये आपकी मदद कर सकता है। ठीक है, क्लियर है। अभी थोड़े दिन पहले अखबार में आया था कि एक हाँ जी परिवार सर। जिसको 5 पुश्तों से, जिसको अपने घर के भैरूजी मान के जिसकी पूजा किए जा रहा है, वो निकले डायनासोर के अंडे। तो आपके पास में इतना बड़ा आर्कियोलॉजी का खजाना है, पर आपको किस तरीके से यूज कर रहे हैं ये तो डिपेंड आप पे ही करेगा ना। तो चैट जीपीटी आपको बहुत तरीकों से मदद कर सकती है, लेकिन उसकी आप उतनी हेल्प ले पाएंगे जितना आप पढ़ेंगे। जितना ज्यादा पढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा ये आपके लिए काम का बनता चला जाएगा। जिससे एक पूरी पोथी आपके पास हो जिसमें रॉकेट बनाने की पूरी विधि लिखी हुई हो, लेकिन आपको साइंटिफिक टर्म्स ही नहीं पता हो, क्या बात की जा रही है वो ही नहीं पता हो, केमिकल कंपोजिशन नहीं पता हो, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स और उनके कंपोजिशन नहीं पता हो, तो वो पूरी किताब आपके लिए कोई काम की नहीं है, कोई वैल्यू की नहीं है। पूरी लाइब्रेरी भरी हुई है, लेकिन काम तो अपने वही आएगी जिसको हम जानना चाहते हैं या जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है ये मेरी बात आपको सभी को। सर ये मोबाइल पे भी चलेगा? यस सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ चल रहा है ना, मोबाइल पे भी चल रहा है ये। मैंने चला के क्लास ओवर नहीं हुई है अभी, क्लास कंटिन्यू करेंगे। 5 मिनट के ब्रेक के बाद। ओके सर। सर।
Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर. अब अपन थोड़ा सा अपना सिनॉप्सिस को डिस्कस कर लेते हैं कि 2022 में जब सिनॉप्सिस सबमिशन के लिए बोला गया था ना, उस वक्त का निकला हुआ नोटिफिकेशन है कोटा विश्वविद्यालय का. ठीक है, तो इसके अंदर आपको अपनी सिनॉप्सिस शोध रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है. तो इसी तरह आपके लिए भी एक ऑर्डर निकलेगा. फिर जो आप सिनॉप्सिस देंगे वो डीआरसी एसआरसी की बैठक में एक्सपर्ट्स के सामने उसको आप प्रेजेंट भी करेंगे और उनके जो भी सजेशन होंगे उस हिसाब से आप उसको काम करेंगे. तो जब सिनॉप्सिस सबमिशन आपका होगा तो सबसे पहले आपको टाइटल ऑफ सिनॉप्सिस लिखना है. ठीक है, तो ये टाइटल ऑफ सिनॉप्सिस क्या होगा? जो आपका रिसर्च टाइटल है, जो आपका थीसिस का भी लास्ट में तक टाइटल रहेगा, ये टाइटल कभी भी चेंज नहीं होगा. तो ये खास तौर पे ध्यान रखें कि उस अपना रिसर्च टॉपिक प्रॉपरली फाइनल करने के लिए अभी से प्रयास करें, काम करें, क्योंकि जो रिसर्च टॉपिक आपने फाइनल कर लिया ना, वो कभी भी चेंज नहीं होगा. और इवन जो आप अंदर लिख देते हैं मेथोडोलॉजी, रिसर्च ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस, वो फिर भी चेंज हो जाती है, लेकिन उसको चेंज कराने का प्रोसेस भी बहुत लेंथी है, आप बहुत डिले हो जाएगा. इसलिए सिनॉप्सिस को बहुत सीरियसली रह के आप फाइनलाइज करिए. ठीक है, ये इसका कवर पेज है जिसमें टाइटल ऑफ सिनॉप्सिस, कोटा विश्वविद्यालय का लोगो, अ सिनॉप्सिस ऑफ द प्रपोज्ड प्लान ऑफ रिसर्च वर्क फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द डिग्री ऑफ डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी. इन दी सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा, फैकल्टी का नाम आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा और सुपरवाइजर का नाम आ जाएगा. वो कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, उनका डिपार्टमेंट, उनका कॉलेज, ये पूरा नाम आ जाएगा. फिर कौन से मंथ और ईयर में आप सबमिट कर रहे हैं वो भी आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि पेपर्स का साइज A4 रहेगा और मार्जिन्स जो हैं वो लेफ्ट में 1.5 इंच और राइट टॉप बिलो में 1 इंच, क्योंकि लेफ्ट साइड में आपको बाइंडिंग करनी होती है तो इसलिए उस साइड 1.5 इंच है. ओरिएंटेशन प्रिफर्ड तो पोर्ट्रेट है, लेकिन जहां जहां रिक्वायर्ड हो, जैसे बहुत बड़ी टेबल है या क्या है, तो वहाँ लैंडस्केप भी किया जा सकता है. अदरवाइज आप पोर्ट्रेट में ही लिखेंगे, जैसे पेज पे अपन लिखते हैं लंबाई में, वैसे ही लिखेंगे. टाइटल जो है वो या तो इंग्लिश, हिंदी या फिर जिसमें आपकी रिसर्च उसमें हो सकता है. ठीक है, उसके यहाँ पे दिए हुए हैं कि फॉन्ट साइज 18 होना चाहिए, स्पेसिंग इंग्लिश के लिए, और स्पेसिंग 1.15 अपर के सेंट्रली अलाइंड होना चाहिए. सेंट्रल पार्ट जो है वो 14 फॉन्ट साइज का 1.15 और सेंट्रली अलाइंड होना चाहिए. ये पूरी सिर्फ फर्स्ट पेज का आपको देखना चाहिए. ये जो आपको ये समझना होगा कि जब आप सिनॉप्सिस बनाएंगे तो फ्रंट पेज के पूरे टाइटल किस किस फॉन्ट की क्या क्या साइज होगी वो भी यहाँ पर लिखी हुई है. हर चीज, मंथ और ईयर कितने का होगा, नेम एड्रेस यूनिवर्सिटी का किस साइज का होगा, सेंट्रल पार्ट पूरा किस साइज का होगा, प्रपोज प्लान फॉर रिसर्च डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की क्या फॉन्ट साइज रहेगी, वो सब कुछ आपका यहाँ लिखा हुआ है. तो जब भी आप इसे बनाएं या बनवाएं बाहर, तो इस गाइडलाइन को साथ लेकर जाएं. ठीक है, उसके बाद जब सिनॉप्सिस का कवर पेज बन जाएगा तो उससे कंटेंट वाला पेज, कंटेंट वाला पोर्शन आएगा. तो आप इसमें ये बोला है कि भाई ये कंटेंट होने चाहिए और 4 कॉपी में सबमिट होगी ये. ठीक है, जो कि स्कॉलर भी साइन करेगा, रिसर्च सुपरवाइजर भी साइन करेगा, और जो भी आपका रिसर्च सेंटर है उसमें प्रिंसिपल, डायरेक्टर या हेड है वो भी साइन करेंगे. सबसे पहले आप अपना नाम और एड्रेस लिखेंगे रिसर्च स्कॉलर का, अपने सब्जेक्ट लिखेंगे, किस सब्जेक्ट में आप कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट किस फैकल्टी के अंदर आता है वो लिखेंगे. उसके बाद रिसर्च सुपरवाइजर का नेम एंड डेजिग्नेशन लिखेंगे, रिसर्च सेंटर का नाम लिखेंगे, उस रिसर्च सेंटर्स पे फैसिलिटीज क्या क्या अवेलेबल है वो आपको रिसर्च सेंटर से पूछ के लिखना पड़ेगा, गाइड उसमें आपकी हेल्प करेंगे. यहाँ से आपका काम शुरू हो गया है. टाइटल ऑफ प्रपोज रिसर्च वर्क. अब मैं फिर कह रहा हूँ कि अपना टाइटल सोच समझ के लिखें, क्योंकि वो एक तो चेंज नहीं होगा, दूसरा पूरी जिंदगी आपके रिसर्च टाइटल रहेगा. उसके बाद में आप अपने रिसर्च को, जो वर्क है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे. इंट्रोडक्शन देने के बाद जो आप प्रपोज रिसर्च वर्क फाइनलाइज करने के लिए लिटरेचर सर्वे किया है उसकी पूरी डिटेल आएगी. तो यहाँ पे आपने कौन कौन से रिसर्च पेपर्स पढ़े, बुक्स पढ़ी, कौन कौन सी वेबसाइट्स आपने सर्च की, उन सबसे रिलेटेड
आप यहाँ पे बातें लिखेंगे प्लस उन्हें साइट भी करेंगे, साइट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे उन्हें, और रेफरेंस लिस्ट बनेगी, पीछे बिब्लियोग्राफी बनेगी। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है आपके रिसर्च प्रपोज रिसर्च वर्क का, ये जो टॉप पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिटरेचर सर्वे करके आप एक और वहां पे पॉइंट डालेंगे रिसर्च गैप का, कि आपने ये रिसर्च गैप आइडेंटिफाई किया है और इस रिसर्च गैप पे आप काम करेंगे, इसलिए आपकी ये ऑब्जेक्टिव है। तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फाइनलाइज करते वक्त बहुत ध्यान रखें, क्योंकि इसी ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हाइपोथेसिस बनती है और उन्हीं हाइपोथेसिस के बेसिस पे रिजल्ट्स आते हैं। तो जब भी आपका वाइवा होगा फाइनल, तो वहां पे यही देखा जाएगा कि ये ऑब्जेक्टिव्स थे, ये मेथड्स लगाए और ये ऑब्जेक्टिव्स के आउटपुट है कि भाई इन ऑब्जेक्टिव्स को हमने इस तरीके से कंप्लीट किया है और ये इसके हमारी फाइंडिंग्स हैं। तो बहुत ध्यान से ऑब्जेक्टिव्स को फाइनलाइज करें अपने। और ऑब्वियसली आपने रिसर्च गैप फाइंड आउट कर लिया तो आपको इंपॉर्टेंस पता है कि आपके रिसर्च वर्क की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपने लिटरेचर सर्वे किया है तो आपको पता है भाई कि ये काम नहीं हुआ है, या हम इस काम को अब एक्सटेंड कर रहे हैं, या इस एरिया में ये काम नहीं हुआ है। तो वो इंपॉर्टेंस उस रिसर्च वर्क की बनती है। क्या इंपॉर्टेंस बनती है कि या तो ये काम हुआ ही नहीं है इस फील्ड में, तो वो इंपॉर्टेंस है, या फिर ये काम हुआ है लेकिन इन एरियाज में नहीं हुआ है, हो सकता है। हम भी हुआ है इन एरियाज में भी हुआ है, लेकिन हम जिस तरीके से कर रहे हैं, यानी जो मेथड है हमारा रिसर्च मेथड, वो बिल्कुल अलग है। इस रिसर्च मेथड से काम नहीं हुआ है, या फिर काम भी हुआ है, एरिया में भी हुआ है, इस रिसर्च मेथड से भी हुआ है, लेकिन जो मेथड यूज किया गया है उसमें हम इम्प्रूवमेंट सजेस्ट कर रहे हैं, और उस इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करने के कारण अब जो ये मेथड है ये ज्यादा रेलिवेंट है इस पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम के लिए, तो वो आपकी इंपॉर्टेंस बनती है। इस तरीके से आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपके वर्क की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है। देन आप अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी, मेरी आवाज भी आ रही है और स्क्रीन भी विजिबल है? यस हाँ सर। सर। यस सर। यस सर। ओके ओके। आवाज आ रही है। इंट्रोडक्शन, फिर आप अपने इंपॉर्टेंस लिखने के बाद अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखेंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी आपका किस तरीके से काम किया है, आपका डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, एक्सप्लेनेटरी हो सकता है, इंपिरिकल रिसर्च हो सकती है। तो जो भी आपकी मेथोडोलॉजी है, जिस तरीके से आप कर रहे हैं, अगर किस तरीके से आप डेटा को कलेक्ट करेंगे, प्राइमरी डेटा लेंगे, सेकेंडरी लेंगे, अगर प्राइमरी लेंगे तो लेबोरेटरी में किस तरीके से काम होगा वो सारा, या फिर सोशल रिसर्च है तो किस तरीके से डेटा को कलेक्ट करेंगे, क्वेश्चनर से, स्ट्रक्चर से, शेड्यूल से, या फिर फोकस ग्रुप डिस्कशन से, इंटरव्यूज से, जो भी आपका मेथड है, उस जब डेटा कलेक्ट हो जाएगा तो उस पर क्या मेथोडोलॉजी अप्लाई करेंगे, क्या आपके रिसर्च मेथड्स रहने वाले हैं, तो वो क्या कैसे अप्लाई करेंगे। उसको अप्लाई करने के बाद में, तो जैसे मैं तो सोशल साइंस में या फिर कोई एम्पिरिकल रिसर्च में बात करें तो आप को जैसे कृष्णाराम चौधरी जी ने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाए होंगे मेथड्स कई सारे, मीन, मोड, मीडियन, रिग्रेशन, फिर उसके बाद में टेस्ट बहुत सारे होते हैं, टी टेस्ट, जेड टेस्ट वगैरह, मीन का कंपैरिजन है और है, या फिर एनोवा है। तो वो सारी मेथोडोलॉजी यहाँ पे आप लिखेंगे। और ये एक और आदत होती है, जब हम नए नए रिसर्चर बनते हैं तो हमें लगता है कि हमें टेस्ट लगाने ही हैं और हमें लेटेस्ट से लेटेस्ट टेस्ट लगाने हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपका डेटा किस तरीके का है और उस पर क्या क्या टेस्ट अप्लाई हो रहे हैं, वही टेस्ट आप यहाँ पे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक और होता है, एक तो होता है वर्क अपन करते हैं टॉप टू बॉटम, एक होता है प्लानिंग होती है बॉटम टू टॉप। अगर आप चाहते हैं कि भाई कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेस्ट हम लगाना चाहते हैं, तो फिर आपको पहले ये देखना होगा कि इन टेस्ट में लगाने के लिए किस तरह का डेटा हमको चाहिए, डेटा को कलेक्शन करने का क्या तरीका हमें अपनाना है कि ये पर्टिकुलर टेस्ट लग सके। कई बार हम क्या करते हैं, हम यहाँ तो बहुत सारे टेस्ट लिख देते हैं, पर हमारा जो डेटा कलेक्शन मेथड है वो उन टेस्ट से मैच नहीं करता, तो बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो हर टेस्ट को अप्लाई करने के लिए एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ डेटा चाहिए। जैसे पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, तो पैरामेट्रिक टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स अलग है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की रिक्वायरमेंट अलग है। रैंडम सैम्पलिंग होनी चाहिए पैरामेट्रिक के अंदर,
आपका डेटा बेल शेप्ड होना चाहिए। तो अगर ये सारी और भी बहुत सारी कुछ उसके अंदर वो रहती हैं लिमिटेशंस, तो हर अपने टेस्ट की कुछ लिमिटेशंस है, हर जगह हर टेस्ट नहीं लागू हो सकता। तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। अब कब पढ़ेंगे, यही समय है जब आपको पढ़ना है। तो आप अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी प्रॉपरली डिवाइस कर पाएंगे। फिर अपना चैप्टर का आप प्लान देंगे कि भाई फर्स्ट चैप्टर क्या होगा, सेकंड चैप्टर क्या होगा, चैप्टर स्कीम पूरी बताएंगे, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, लिटरेचर रिव्यू हो गया। एक मैं इन जनरल बता रहा हूँ, लिटरेचर रिव्यू हो गया, फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी हो गया, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, डेटा फाइंडिंग्स, रिजल्ट्स, कंक्लूजन, इस तरीके से टेंटेटिव चैप्टर प्लान। जब आप इसके लिए आपको आपके एरिया में जो थीसिस लिखी हुई है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा आजकल वो है शोध गंगा, एक वेबसाइट है। तो शोध गंगा पे अपलोड करनी पड़ती है आजकल यूनिवर्सिटीज को, जो भी रिसर्च होती चली जाती है। तो उसके अंदर आप जाके जब थीसिस देखेंगे, बहुत सारी थीसिस, अब आपके टॉपिक पे कितनी मिलेंगी वो वहां पे जाके ही पता चलेगा। तो बहुत सारी आपको थीसिस मिलेगी, तो आप उनका चैप्टराइजेशन, चैप्टर प्लान, रिसर्च मेथोडोलॉजी वो सब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से उसमें काम किया जा सकता है। ठीक है, फिर आपको देना पड़ेगा कि ये रिसर्च में आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन क्या है इस प्रपोज रिसर्च वर्क का? ऊपर तो इंपॉर्टेंस थी, अब कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब हो गया कि जब आप रिसर्च वर्क कंप्लीट कर देंगे तो क्या कंट्रीब्यूशन आपकी इस रिसर्च का रहने वाला है, क्या आउटपुट रहने वाला है, और उस कंट्रीब्यूशन का क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, चाहे साइंटिफिक रिसर्च में हो, चाहे सोशल रिसर्च में हो, चाहे लिटरेरी रिसर्च में हो। और लास्ट में आप रेफरेंसेस लगाएंगे, जो सारा ये इतना आपने काम किया है सिनॉप्सिस बनाने में, तो कहाँ कहाँ से क्या क्या आपने डेटा लिया है उनको आप यहाँ पे साइट करेंगे, प्रॉपरली रेफरेंस करेंगे। उसके बाद में फॉर्मेट है। अब मैं जो ये फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, जो ये 2022 में निकला हुआ है, हो सकता है इसके अंदर कुछ प्लस माइनस हो जाए जब आपके टाइम पे ये निकले। तो जब जो भी ऑर्डर आपके टाइम पे निकले उसको वेबसाइट से एक्सेस करें और उसके बेसिस पे ही अपना सारा काम करें। ठीक है, फिर सिनॉप्सिस के अंदर क्या पेपर साइज, क्या मार्जिन रहेगी, टाइपिंग वर्क क्या रहेगा, हेडिंग क्या रहेगी, सब हेडिंग क्या रहेगी, रनिंग पार्ट की क्या फॉन्ट साइज रहेगी, फिगर्स एंड टेबल्स हैं तो उनको किस तरीके से लिखना है, फिगर की नंबरिंग कैसे होगी, टेबल की नंबरिंग कैसे होगी, फिगर्स और टेबल की लिस्ट आगे अलग से लगानी पड़ती है। कंटेंट जो लिस्ट ऑफ कंटेंट है या टेबल ऑफ कंटेंट है, उसके अलावा लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स अलग से हम बना के उसमें लिखते हैं। तो हर फिगर कौन से पेज पर है ये वहां पे हम बताते हैं आगे स्टार्टिंग में ही, टेबल ऑफ कंटेंट के बाद में। ठीक है, फिर रेफरेंस राइटिंग है। तो क्यों पिछली बार ये निकला नोटिफिकेशन निकला था, उसमें जैसे मैंने कई आपको टीचर्स ने बात कर ली होगी स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग की। तो 10 स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग यहाँ पर दी हुई है, इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड स्टाइल, हार्वर्ड स्टाइल, शिकागो स्टाइल, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, मॉडर्न ह्यूमैनिटीज रिसर्च एसोसिएशन, वैंक्यूवर रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स IEEE स्टाइल। अब मैं यहाँ पे फिर कह रहा हूँ कि अभी इसको आप मोटा मोटी तौर पे तो यही रहेंगी, पर फिर भी जो आपका नोटिफिकेशन निकलेगा उसको ध्यान से पढ़ना, उसी हिसाब से सब चीज करना। ठीक है, तो ये सिनॉप्सिस के बारे में मैं बता रहा था। यस सर। अब मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि जो आपका ये चल रहा है रिसर्च, इसके अंदर साथ साथ में आपने अपने टॉपिक फाइनल करने शुरू कर दिए हैं? जी सर। जी सर। तो Yes, फाइनल sir. हो गया, बट जी सिनॉप्सिस सर। स्टार्ट नहीं की है अभी। तो टॉपिक तो फाइनल करने एग्जाम के लिए सबसे पहले आपको लिटरेचर को रिव्यू करना पड़ेगा, फिर एक ब्रॉड टॉपिक सोचना पड़ेगा। सर आपकी वॉइस रिपीट हो रही है। भरत जी आपका माइक ऑन है। तो आपको लिटरेचर रिव्यू करके मेजर टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे,
फिर आप जाके देखेंगे कि भाई किस किस में मटेरियल कितना अवेलेबल है, कौन कौन से टॉपिक्स आपके इंटरेस्ट एरिया से मैच होते हैं और किस किस में आपकी गाइड भी कंफर्टेबल है, तो उनके साथ मिलके आप इसको काम को आगे बढ़ाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि हर एक सिस्टम की लिमिटेशन होती है, तो अपने सिस्टम में भी बहुत सारे जो गाइड्स हैं बहुत इन्वॉल्व होते हैं, कुछ तो कुछ लिमिटेड इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको अपने लेवल पे भी बहुत सारा काम करना होता है। तो इसीलिए ये वर्कशॉप यहाँ पे या ये कोर्स वर्क रखा गया है। जब आप इसको करते हैं तो आपको समझ में आता है कि किन किन जगहों से हम जाकर अभी क्या लेटेस्ट टॉपिक्स चल रहे हैं, किन लेटेस्ट टॉपिक में रिसर्च हो रहा है, वो सब आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसीलिए इसको हमने प्लान किया था पहले, ताकि आपके पास में अभी भी 4 महीने का समय है और इसमें आप अच्छी सिनॉप्सिस बनाएं ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो सिनॉप्सिस पे काम। सर हाँ, अभी ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही हमें 4 मंथ और मिलेंगे ना सिनॉप्सिस रेडी करने के लिए? नहीं, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ 4 मंथ और मिलेंगे, मैं कह रहा हूँ 15 दिसंबर से आपका कोर्स वर्क शुरू हो गया है और कोर्स वर्क जब खत्म हो जाता है उसके बाद में आपको डेट मिल जाती है कि भाई इस डेट पे आपकी SRC DRC है। ओके सर। ठीक है, सर तो अगर आप उसमें ये बच्चा 6 प्रेजेंट महीने नहीं का होता समय है, टोटल मानते हुए चलें, 15-20 दिन ऊपर नीचे हो जाएगा। चलिए, आज यहीं तक लेक्चर था। आज आप फ्री हैं अब इसके बाद में, और कल सुबह 10:30 बजे नेक्स्ट क्लास होगी। ओके, सर आज की जो ओके सर, थैंक आज यू। जो पढ़ा थैंक सर यू आज जो पढ़ा है उसकी PDF ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा सर। थैंक यू।